Assalamualaikum. But in this video lecture, I will start delivering the pathology of inflammatory breast disorders. Previously, I actually started the breast pathology, the really important chapter, beta. The inflammatory breast disorders, they are not really common. The inflammation in the breast, due to whatever reason, inflammation in the breast due to whatever reason, due to infections, due to trauma, due to some whatever we'll be discussing, but inflammation in the breast is not something common, remember. Okay, so it is rare actually. It is actually rare, and it is less than 1% of the breast symptoms, and it is caused by infections. Maybe any bacteria or virus or anything entering into your breast may trigger the inflammation, right? And it may be due to the autoimmune disease, autoimmunity against the breast. If this is the breast, and the main component, there are the lobules, and the lobules open into the terminal duct and ultimately the lactiferous duct. तो इसके किसी भी एंटीजन के खिलाफ लेक्टिफेरस डक्ट, टर्मिनल डक्ट, लोब्यूल, किसी भी चीज़ का एंटीजन हो उसके खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी जनरेट हो सकती है डिफरेंट कंडीशंस में। और अगर ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होगी तो ऑटो इम्यून सेल्स और ऑटो एंटीबॉडीज दे विल कम एंड दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग अगेंस्ट दीज टिश्यूज एंड विल डिस्ट्रॉय दीज टिश्यूज. When there is destruction, there is inflammation, right? So it is not only infections, not only autoimmune diseases that produce inflammation of the breast, but the inflammation of the breast may also be due to foreign body type reactions. Foreign body type reactions to the extravasated keratin or the secretions. Let me tell you what does it mean. That if there is if there is something foreign present in your breast, इफ़ लेट सपोज, इसका तो कंप्लीट एक टॉपिक है इसके बाद, तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अब फ़र्ज़ करें आपकी ये अगेन ब्रेस्ट है, ठीक है, और ये एक लेक्टिफेरस डक्ट इसमें ओपन होती है निपल के लेवल पे, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि अगर इस डक्ट में इसकी जो लाइनिंग एपिथीलियम है वो केराटिन बनाए और केराटिन यहाँ से स्पिल होके आसपास के टिश्यू में डिपॉजिट हो जाए, तो इस केराटिन के ख़िलाफ़ एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये बेटा आपकी नॉर्मली डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, और इसकी जो लाइनिंग एपिथीलियम है, फ़र्ज़ करें अगर ये स्क्वैमस एपिथीलियम है और वो केराटिन प्रोड्यूस करती है और वो केराटिन यहाँ डक्ट से निकल के एक्स्ट्रा वजेट कर जाए बाहर, और बाहर जाने के बाद ये केराटिन के ख़िलाफ़ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आपको समझ आया बेटा कि ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन के क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक कंडीशन है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। ये ऐसा ब्रेस्ट कैंसर है जो इन्फ्लेमेशन को मिमिक करता है। आपको लगता ही नहीं है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या इन्फ्लेमेशन है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा पता होना लाजमी तो नहीं है, लेकिन आप यूँ याद कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें जो ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, फ़र्ज़ करें दिस इज़ इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, राइट? तो दिस इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर एंड दिस इज़, लेट सपोज द ब्लड वेसल, दिस इज़ व्हाट? Blood vessel. And you know what happens, some tumor cells, they dislodge from here and they actually block the blood vessel, and here is the tissue, breast tissue, which were actually supplied by this blood vessel. So this is the tumor growing in the blood vessel, this is a tumor growing in the breast, and some tumor cells get out of this tumor territory. Some tumor cells dislodge from this tumor and enter into the blood vessel, and they actually clog the blood vessel. So this blood vessel is unable to provide sufficient supply to this breast tissue. Okay, so there will be ischemic necrosis and obviously inflammation, right? So this is inflammatory breast cancer because it is ultimately producing inflammation. ठीक है बेटा, इस तरीके से इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, दे मिमिक द इन्फ्लेमेशन बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द डर्मल वस्कुलेचर with tumor emboli. They are actually obstructing the vasculature with the tumor emboli, right? I hope you are clear with this beta. Now we'll be discussing the inflammatory disorders one by one. We have to discuss at least 5 to 6. So let's first start with acute mastitis. The very first inflammatory breast disorder, beta. The very first inflammatory breast disorder is the acute mastitis. Acute mastitis is the infection and the inflammation of the breast parenchyma. जाहिर है पहले infection होगा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड करेगा और फिर उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एक्यूट mastitis, राइट? So acute mastitis is the infection and ultimately inflammation of the breast parenchyma. You must be thinking, what the heck is this parenchyma? And you know about the term stroma, right? And here is the parenchyma. So you know, beta, in the breast you have got this structure. This is your nice looking breast. Okay, so you have got some lobules, right? Some lobules, and they open into some ducts. I know this is not a real good picture, but you can see, okay, these are the lobules and these are the ducts opening at the level of the nipple. And you know, there is some stroma surrounding this stroma surrounding the lobules and the ducts, right? This is the stroma. The tissue which is surrounding the parenchyma is called stroma, right? You understand? So what is parenchyma in this case? These lobules and the ducts, they make up the parenchyma. They are your parenchyma. These ducts, okay, and the lobules, these are your parenchyma, okay. And this parenchymal tissue is surrounded by stromal tissue. And don't forget one thing, beta, never forget one thing, that this stroma is fatty if you are young. I hope I'm not wrong. No, the stroma is fibrous if you are young. The stroma is fibrous if you are young. The stroma is fatty if you are old, right? So young girls, they have got fibrous stroma, okay? And women who are a little older, 40 years or plus, they have got fatty stroma. Now you are clear with this difference? Okay. So acute mastitis is the infection of breast parenchyma, the lobules and the ducts, right? Now the question is, how the microorganism enters into your breast and it causes infection. The acute bacterial mastitis typically results from the local bacterial infection during the first month of breastfeeding. ब्रेस्ट फीडिंग के पहले महीने में ऐसा क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निपल के थ्रू इंटर करते हैं और अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन करा देता है. During first month of breastfeeding, your nipple is more vulnerable to develop some cracks and fissures. Why? Obviously, due to breast suckling from the baby during the feeding, right? So he keeps on suckling the nipple. So there may be some fissures or some cracks on the nipple. So सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है, इसके अलावा और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाहर से अंदर एंटर होता है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. मदर कंटिन्यूसली फीड करती है बेटा, तो ज़ाहिर है निपल के थ्रू कंटिन्यूसली सिक्रेशंस बाहर आ रही हैं. और आपको पता है सिक्रेशंस आर रियली गुड सोर्स ऑफ सीडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो फर्स्ट मंथ ऑफ लैक्टेशन, फर्स्ट मंथ ऑफ फीडिंग, फर्स्ट मंथ ऑफ फीडिंग, उसके दौरान क्या होता है, व्हेन द मदर इज़ ऑब्वियसली नर्सिंग हर चाइल्ड, so there may be some cracks or fissures in her nipple due to suckling of the baby, or you know, because she is feeding, so there is continuous release of some secretions from her nipple. So that continuous flow of secretions from her nipple may be a reason, you know, to provide good environment to the development of the microorganisms there, right? So once you can see, now here we can continue. फ्रॉम दिस पोर्टल ऑफ एंट्री, एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला गया, इट कैन बी स्टेफ ऑरियस बाय द वे, और लेस कॉमनली स्ट्रेप्टोकोक्साई. ठीक है, अंदर आ गया बैक्टीरिया बेटा, लेस कॉमनली स्ट्रेप्टोकोक्साई, मोर कॉमनली स्टेफ ऑरियस. They invade the breast tissue, they entered through the nipple, and they now in the breast tissue, particularly the breast parenchyma. ठीक है, ठीक है. Bacteria entered through the nipple into the breast parenchyma and produced the infection of the breast parenchyma, inflammation of the breast parenchyma. What next? What next, beta? Two things have to happen. Let me show you. Actually, let me show you the picture first. This is the picture. Yeah, this is the picture. Okay, this is the nice presentation. You can see the breast. Okay, can you see what is the presentation? This is the typical case of acute mastitis. You can see there is erythema, that is redness of the breast.
and there is nipple retraction and the thickening of the skin of the nipple. Yeah, so there is actually beta this erythema. There is actually erythema, and this is painful. Don't forget. एंड ऑब्वियसली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया ब्लड में भी सीड करता है और फीवर भी होता है, ठीक है। जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वो ब्रेस्ट पे एरिदीमा और पेन होता है, ठीक है, और साथ में फीवर अपीयर होता है। अब एक ये पिक्चर है एक्यूट मेस्टाइटिस की, ठीक है, और एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ एक्यूट मेस्टाइटिस की, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बेटा। ओके, this is another picture. This is also acute mastitis. Can you see the difference between these two? This acute mastitis, you can see the erythema is defined. The erythema is defined and it is having good looking margins. Okay, and if I compare this acute mastitis with this acute mastitis, I don't think you can find some good margins of the erythema. This is very important point. This is acute mastitis, but the margins are not that defined. That was the acute mastitis. Yeah, that was the acute mastitis. This, but the margins are good looking. So let me tell you what the picture is actually. So if you see the margins are defined, if you see the margins are defined, then it is due to staph aureus, right? जो कि एब्सेस कराता है अंदर ब्रेस्ट में, ठीक है। एंड इफ द मार्जिन्स आर स्प्रेडिंग, they are irregular, they are not defined, then it is your streptococcus, ठीक है, जो कि लेस कॉमन होता है। सो नाउ और इसको और ये जो होता है ना बेटा स्ट्रेप्टोकोकस, ये सेल्यूलाइटिस कराता है इंस्टेड ऑफ एब्सेस फॉर्मेशन। सो नाउ यू कैन सी कहते हैं कि इफ़ नॉट ट्रीटेड इन्फेक्शन इट में स्प्रेड टू इंटायर ब्रेस्ट, ठीक है, इसको देख लेंगे। लेकिन या स्टेफाइलोकोकल बैक्टीरिया इट प्रोड्यूसेस द एब्सेसिस which may be single or multiple. However, streptococci, they cause spreading infection in the form of cellulitis, right? So if they do tell you that there is abscess formation, and along with abscess formation, this is the presentation, you can find the defined erythema. So this is the acute mastitis caused by staphylococci, and if there is cellulitis and there is a spreading infection and you see erythema in this particular fashion, this is going to be streptococci, ठीक है बेटा। streptococcal cellulitis, this is not the staphylococcal abscess, this is the streptococcal cellulitis. I hope you are clear with this. What should be the treatment option, my son? What should be the treatment option? Obviously antibiotics. अगर लैक्टेशनल मेस्टाइटिस है बेटा, अगर देखो ना एक्यूट मेस्टाइटिस का रीज़न लैक्टेशन है ना, तो फिर तो एंटीबायोटिक से इजीली ट्रीट हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ और रीज़न है, और क्या रीज़न हो सकता है बेटा लैक्टेशन के अलावा एक्यूट मेस्टाइटिस का? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेस्ट में लेके आने के। इट मे बी एनी इम्प्लांट की वजह से हो सकता है, कोई ब्रेस्ट हाँ ब्रेस्ट में पियर्सिंग हुई हुई हो, ब्रेस्ट में कोई प्रोस्थेटिक्स लगे हुए हों, तो इस वजह से भी। लेकिन हाँ, मोस्ट कॉमन जो एक्यूट मेस्टाइटिस होती है वो लैक्टेशनल ही होती है, फीडिंग के दौरान ही होती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देंगे इजीली ट्रीट हो जाएगा, और उसके अलावा सर्जिकल ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ सकती है एब्सेस को रिमूव करने के लिए, लेकिन रेयरली। So we are clear with this very first inflammatory breast disorder. Then comes in other inflammatory breast disorder. Let me explain you. Is the squamous metaplasia of the lactiferous duct, right? Okay. So this squamous metaplasia of the lactiferous duct, इसके तीन और नाम हैं। Squamous metaplasia of the lactiferous duct. Okay, it is called recurrent subareolar abscess, and it is also known as periductal mastitis, and also known as Zuska disease. What disease? Zuska disease. So let me first explain you the entire condition from the picture, then you will be able to understand the notes. Okay, so okay, ये है, this is the level of the nipple, right? And this is one lactiferous duct opening into the nipple, and this is another lactiferous duct which is opening into, this is actually another lactiferous duct
opening into the nipple. But you see, this is the patent lumen. This is the completely patent lumen and the good looking lactiferous duct opening into the nipple. But this is not the lactiferous duct anymore. You can see this is completely obstructed with some, yeah, you can see this is completely obstructed with some cells and some secretions, right? So what is the story behind this? Once again, बिकॉज जितनी बेस अच्छी होती है वो डिजीज उतनी अच्छी सारे समझ आएगी, जाहिर सी बात है। दिस इज द लेवल ऑफ द निपल इनटू विच दिस लेक्टिफरस डक्ट इज ओपनिंग, and this is good looking patent and the patent lumen, open lumen of the lactiferous duct. But this duct is having some problem, some pathology. This is the area of the nipple and this surrounding area is the level of the is the region of the areola. अरे इस निपल के अराउंड बेटा एरियोला ही होता है, सही है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाता हूँ। ये नॉर्मल साइट है, ठीक है, जिसमें ये ज़बरदस्त किस्म की डक्ट है, निपल में ओपन हो रही है, लेकिन ये यहाँ पे डक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। So you can see beta, this is the lactiferous duct which is lined by these cuboidal cells, lined by these cuboidal cells, and these cuboidal cells are normal and they are good looking. लेकिन जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं बेटा, जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट, जिसको हम जुस्का डिजीज़ भी कहते हैं, मैंने बताया। तो उसमें क्या होता है कि जो लेक्टिफेरस डक्ट है ना बेटा, जो उसकी लाइनिंग एपिथेलियम है उसकी मेटाप्लेजिया हो जाती है। इस लाइनिंग एपिथेलियम की मेटाप्लेजिया हो जाती है, और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये क्यूबॉइडल नहीं रहती, ये स्क्वामस हो जाती है। जब ये सेल्स स्क्वामस हो जाते हैं तो देखिए, ये पहले कुछ इस तरीके से था, ये लेक्टिफेरस डक्ट थी, उसमें क्यूबॉइडल सेल्स थे, ठीक है, और ये क्यूबॉइडल सेल्स अब क्यूबॉइडल सेल्स नहीं रहते, ये चेंज हो जाते हैं, इनकी मेटाप्लेजिया हो जाती है, ये क्यूबॉइडल की जगह पे ये कैसे हो जाते हैं, ये स्क्वामस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये स्क्वामस हो जाते हैं तो भरपूर केराटिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो भरपूर केराटिन जो है वो आपके इस ल्यूमन को, जो है लेक्टिफेरस डक्ट के ल्यूमन को, वो केराटिन क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है। अब ये है एक्चुअली आपकी लेक्टिफेरस डक्ट, जो नॉर्मली ओपन होनी थी आपके निप्पल में, अभी भी ओपन हो रही है निप्पल में, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आ गए हैं क्यूबॉइडल की जगह स्क्वामस सेल्स, और उन स्क्वामस सेल्स दोनों तरफ से, जाहिर सी बात है, ये स्क्वामस सेल्स आ गए, और स्क्वामस सेल भरपूर केराटिन दे रहे हैं, भरपूर केराटिन दे रहे हैं, और उस केराटिन ने पूरा का पूरा डक्ट को क्लॉग कर दिया है, डक्ट को बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा केराटिन बन रहा है उसने डक्ट को भी ब्लॉक कर दिया है, दूसरा वो केराटिन यहाँ से नीचे स्पिल भी होगा, यहाँ से केराटिन वो एक्स्ट्रा नीचे स्पिल होगा, और जाहिर सी बात है यहाँ पे मिल्क की सीक्रेशंस जो है वो भी जमा हो रही है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो एक तो भरपूर केराटिन यहाँ से बन के नीचे स्पिल आउट हो रहा है, दूसरा नीचे से मिल्की सीक्रेशंस आ रही हैं जो कि ऊपर नहीं जा पा रही क्योंकि रास्ता बंद है ऊपर। तो आपको पता है बेटा, जब कहीं पे भी बॉडी में सीक्रेशंस स्टैटिक होती हैं, जमा होती हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, और अल्टीमेटली एब्सिस बन जाएगा बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से और उसकी डेथ की वजह से, ठीक है, पस फॉर्मेशन, पस कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि नॉर्मली आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, अगर ये इसकी मेटाप्लेजिया हो जाए और ये रिप्लेस हो जाए स्क्वामस सेल से, तो वो स्क्वामस सेल क्या करेंगे, भरपूर केराटिन देंगे, और वो केराटिन इस डक्ट को क्लॉग कर देगा, बंद कर देगा। केराटिन इज़ वेरी मच हार्ड थिंग, सो दैट केराटिन विल कम्प्लीटली ब्लॉक दिस डक्ट, राइट। और क्या होगा, वो केराटिन नीचे स्पिल होता रहेगा, और नीचे मिल्की सीक्रेशन भी जमा होगी, और यहाँ पे बेटा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी और एब्सिस बन जाएगा। अब ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं, तो बेटा फिर क्या होगा, एक और रास्ता जो है, एक और टनल जो है डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होने की वजह से एक और टनल डेवलप हो जाएगा। क्या ये रास्ता, ये नॉर्मली तो ज़ाहिर नहीं होता, ये रास्ता अब कहाँ खुल रहा है बेटा, ये निपल के लेवल पे खुल रहा है, नहीं, इस लेवल पे खुल रहा है। ये किस चीज़ का लेवल है बेटा, एरियोला का लेवल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फटाफट आपको बताऊँ कि ये अगर ऐसी की तैसी उसकी, ये देखें, ये अगर ब्रेस्ट है, ये निप्पल है, नॉर्मली डक्ट यहाँ पे खुल रही थी, तो आपका जो फिस्टुला है उसका क्या होगा, ये डक्ट तो ओपन होगी लेकिन एक फिस्टुला खुल जाएगा इस एरियोला के अराउंड, ठीक है। ये निप्पल है, ये एरियोला है, इस एरियोला के अराउंड जो है एक और ओपनिंग खुल जाएगी, दैट इज़ द फिस्टुला, राइट।
सो वी कैन गेट बैक टू अवर पिक्चर। यहाँ पे एब्सिस बना बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से। बैक्टीरियल ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि यहाँ से केराटिन स्पिल हो रहा था और मिल्की सीक्रेशन भी जमा हो रही थी। प्रेशर जनरेट हुआ, एक एबनॉर्मल पाथवे फिस्चुला क्रिएट हुआ और फिस्चुला जो है वो जाके एज ऑफ एरियोला पे खुलता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा। बहुत खिचड़ी मच गई है, लेकिन आई एम स्टिल श्योर यू पीपल आर clear with the concepts. So let's get to the notes. Yeah. Okay. Right. The squamous metaplasia of the lactiferous duct beta, as I mentioned, it is known as recurrent subareolar abscess, पेरिडक्टल मेस्टाइटिस, और इसके अलावा इसको हम ज़ुस्का डिजीज़ भी कहते हैं। अब सारी चीज़ हमने बेटा पढ़ ली है, अब ज़रा इसको नोट्स में रीड करते हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, वुमेन एंड समटाइम्स मैन प्रेजेंट विद द पेनफुल एरिथमेटस सब एरियोलर मैस। अब सवाल ये है कि जो सब एरियोलर मैस है, क्या वो हमने पिक्चर में डिस्कस किया था? बिल्कुल डिस्कस किया था। ये सब एरियोलर मैस किसको कह रहे हैं? एब्सिस को कह रहे हैं। देखें, ये आपकी पिक्चर थी, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं फटाफट से। ये आपकी पिक्चर थी, ओके। ये एरियोला है, ये एरियोलर मसल है, ये निप्पल का लेवल है, ये पूरा एरियोला है और ये एरियोला के मसल्स हैं। एरियोला के नीचे सब एरियोलर मैस क्रिएट हुआ है, एब्सिस बना है, बिल्कुल बना है। ठीक है बेटा। सो वुमेन एंड समटाइम्स मेन एज वेल, दे प्रेजेंट विद द पेनफुल एरिथमेटस सब एरियोलर मैस। हियर इज द पेनफुल सब एरियोलर एरिथमेटस, पेनफुल सब एरियोलर मैस एक्चुअली। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो फिर बैक्टीरियल एब्सिस की फॉर्म में होता है। ठीक है, रिकरेंट केसेस में अगर बार बार ऐसा होता रहे कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो, केराटिन स्पिल होता रहे, मिल्की सीक्रेशन जमा होंगी, एब्सिस बनेगा, तो फिस्टुला क्रिएट हो जाता है। फिस्टुला ट्रैक टनल्स अंडर द स्मूथ मसल ऑफ द निप्पल एंड ओपन्स इनटू द स्किन एट द एज ऑफ द एरियोला। क्या लिखा हुआ है बेटा? In recurrent cases, fistula tract tunnels under the smooth muscles of the nipple. ये रहे smooth muscles and it actually tunnels under the smooth muscles of the nipple and opens into the skin at the edge of the areola. Okay. Many women have inverted nipple as a secondary effect of the underlying inflammation. यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त inflammation चल रही है तो बहुत मुमकिन है कि nipple जो है वो इन्वर्ट हो जाए, उसकी स्किन भी जो है वो इन्वर्ट हो जाए बेटा। ठीक है, अंदर की तरफ आ जाए। मोर देन 90% आर द स्मोकर्स। सवाल ये है कि ये स्क्वामस मेटाप्लेजिया होती क्यों है? क्यों आपकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो स्क्वामस में चेंज हुई, फिर स्क्वामस में आने के बाद फिर वो भरपूर सिक्रेशंस आई केराटिन की, डक्ट बंद हुई, डक्ट बंद होने के बाद नीचे एब्सिस बना, फिस्टुला बना। वाई मेटाप्लेजिया? No, look, the defined cause of the metaplasia is not there, but yeah, you can say that this metaplasia may be due to the tobacco smoking, which causes the vitamin A deficiency. I completely don't know how, that if you smoke and there is ultimately vitamin A deficiency, and this vitamin A deficiency has great role. It actually alter the differentiation of the ductal epithelium, जिसकी वजह से क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं रहती, फिर वो स्क्वामस हो जाती है। ठीक है बेटा, अच्छा ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉकिंग अबाउट बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लैक्टिफेरस डक्ट, द इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। Look, my son, the morphology, everything is clear. We discussed, but just for understanding purpose again, that the keratinizing squamous metaplasia of the lactiferous duct or the nipple duct, pele, normally it has to be cuboidal, but it has undergone metaplasia, so it is now squamous, right? So it keeps on giving you lots of keratin, and the keratin shed from these squamous cells and they plug the ductal system. Keratin is very much hard, so it actually completely plugs the duct. Okay, right? एक बार duct बंद हो गई तो उसके बाद क्या होगा? Intense chronic granulomatous inflammatory response develops once the keratin spills into the surrounding periductal tissue. केराटिन यहाँ से एक्स्ट्रा वजेट होगा, नीचे स्पिल होता है और यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्रॉनिक, खास करके क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। जाहिर सी बात है बेटा, केराटिन तो एक यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए ना, नॉर्मली इस जगह पे तो नहीं होना चाहिए, उसको अपने डक्ट के अंदर होना चाहिए थोड़ा बहुत।
लेकिन जब ये केराटिन यहाँ से एक्स्ट्रा वजेट करके यहाँ पेरिडक्टल टिश्यू में आ जाएगा तो यहाँ पे तो उस केराटिन के खिलाफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ही जनरेट होगा, एंड दैट इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। आल्सो यहाँ पे मिल्की सिक्रेशन भी जमा होंगी और बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और एब्सिस बन जाएगा। ठीक है, बार बार अगर रिकरेंसेस होंगे सेकेंडरी एनाएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा और जाहिर सी बात है एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एब्सिस फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है बेटा आपकी इस कंडीशन का, स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट का? So treatment has to be beta simple incision drains the abscess cavity। ये आपकी कंडीशन है, आप क्या करें कि इसको एब्सिस को जो है ना ड्रेन कर दें। लेकिन क्या इससे डिजीज़ आपकी ट्रीट हो जाएगी? नहीं। आपने अगर इस एब्सिस को ड्रेन भी कर दिया तो फिस्टुला तो बना हुआ है, आपकी डक्ट तो ब्लॉक है, तो दोबारा केराटिन आएगा, दोबारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, दोबारा मिल्क जमा होगा, दोबारा एब्सिस बन जाएगा। तो इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो है इन ब्लॉक रिजेक्शन ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉक्ड लेक्टिफेरस डक्ट, रिजेक्शन द रिमूवल ऑफ दिस फिस्टुलरी ट्रैक्ट। ये जनरल सर्जन की प्रैक्टिस का काम है बेटा, जिसमें क्या होता है कि आप एब्सिस को ड्रेन करो, लेकिन एब्सिस ड्रेन करने से डिजीज़ ट्रीट नहीं होगी। आपने इस इन ब्लॉक रिजेक्शन करनी पड़ेगी इस लेक्टिफेरस डक्ट की भी, जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम थी, ताकि फसाद की जड़ी ख़त्म हो जाए, और इस फिस्टुलरी ट्रैक्ट को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सो अगर आप सिंपल इंसिजन करके एब्सिस को ड्रेन करते हो तो मसला ये है कि ऑफेंडिंग केराटिनाइजिंग एपिथेलियम तो वहीं पर मौजूद है ना, तो बार बार रिकरेंसेस होंगे। फिर उस केस में आपको इन ब्लॉक सर्जिकल रिजेक्शन करनी पड़ेगी डक्ट की भी और फिस्टुलरी ट्रैक्ट की भी, और साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वामस मेटाप्लेजिया ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट, एंड we have some other inflammatory disorders as well we'll be discussing beta।